ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا بیوٹی پارلر تھا جس کا نام خوابوں کا بیوٹی پارلر تھا۔ یہ پارلر باقی سب سے مختلف تھا کیونکہ یہاں آنے والی ہر عورت کے خواب حقیقت میں بدل جاتے تھے، لیکن یہ بات گاؤں والوں کو معلوم نہیں تھی۔ پارلر کی مالکن مسز زہرا ایک پراسرار خاتون تھی جو ہمیشہ خوبصورت سفید لباس میں رہتی تھی اور اس کی مسکراہٹ سب کو اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی۔ مسز زہرا کا پارلر ایک عام بیوٹی پارلر نہیں تھا بلکہ ایک جادوئی جگہ تھی۔ یہاں ہر شے میں ایک خاص جادو بھرا ہوا تھا۔ یہاں کے آئینے، کنگھے اور حتیٰ کہ خوشبوئی بھی عام نہیں تھی۔ زہرا کے پاس ایک جادوئی کتاب تھی جس میں پرانے اور طاقتور جادو درج تھے۔ وہ ہر گاہک کے دل کی خواہش کو پا سکتی تھی اور اسے پورا کرنے کے لیے ایک خاص جادوئی عمل کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں کی ایک غریب لڑکی مریم، جو اپنی سادگی کی وجہ سے اکثر مذاق کا نشانہ بنتی تھی، اس پارلر میں آئی۔ مریم نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بن جائے تاکہ سب اس کی عزت کرے۔ مسز زہرا نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا اور اس کے بال سنوارنے لگے۔ جیسے ہی زہرا نے کنگھی کی، مریم کے بال چمکدار اور ریشمی ہو گئے، اور جب مریم نے آئینے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ مریم کی خوبصورتی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی۔ اب سب اس سے ملنا چاہتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چل سکی کیونکہ مریم کے دل میں غرور آ گیا۔ وہ اپنی پرانی سادگی کو بھول گئی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگی۔ ایک دن مریم دوبارہ بیوٹی پارلر گئی اور مسز زہرا سے شکایت کرنے لگی کہ اب لوگ اس سے حسد کرتے ہیں اور وہ پہلے کی طرح سکون سے نہیں رہ سکتی۔ زہرا نے اسے آئینہ دکھایا اور کہا، خوبصورتی دل میں ہوتی ہے مریم، اگر تمہارا دل اچھا ہو تو دنیا تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گی، ورنہ ظاہری حسن جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر مریم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے زہرا سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اپنی اصل سادگی اور اچھے کردار کو اپنائے گی۔ مسز زہرا نے مریم کو خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ جانتی تھی کہ مریم نے ایک اہم سبق سیکھ لیا ہے۔ خوابوں کا بیوٹی پارلر اپنی جادوئی کہانیوں کے ساتھ گاؤں میں ایک راز ہی رہا، لیکن اس کا ہر گاہک زندگی کا ایک انمول سبق لے کر جاتا تھا۔ مریم جب بیوٹی پارلر سے نکلی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ مسز زہرا کی باتوں میں کتنی گہرائی تھی۔ گاؤں واپس پہنچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل کر دوسروں کے لیے ایک مثال بنے گی۔ مریم نے سب سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگی جنہیں وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کمتر سمجھتی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی، کیونکہ مریم پہلے جیسی نرم دل اور محبت کرنے والی بن چکی تھی۔ چند دن بعد مریم کو ایک خواب آیا۔ خواب میں مسز زہرا نے اسے ایک خوبصورت ہار دیا اور کہا، یہ ہار اس بات کی علامت ہے کہ تم نے دل کی خوبصورتی کو اہمیت دی۔ جب بھی تم دوسروں کی مدد کرو گی، یہ ہار چمکے گا اور تمہیں سکون دے گا۔ مریم جب صبح بیدار ہوئی تو واقعی اس کے تکیے کے پاس وہی ہار پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مریم نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پلاتی، بیماروں کا خیال رکھتی اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتی۔ گاؤں کے لوگ اب اسے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی سراہنے لگے۔ جلد ہی مریم کی نیکیوں کا اثر گاؤں کے دوسرے لوگوں پر بھی پڑا۔ وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور گاؤں میں محبت اور بھائی چارے کا ماحول بن گیا۔ مسز زہرا کا جادوئی بیوٹی پارلر گاؤں والوں کے دلوں میں ایک کہانی بن گیا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ جادوئی تھا نہیں۔ ایک دن جب مریم دوبارہ مسز زہرا کا شکریہ ادا کرنے گئی تو بیوٹی پارلر بند ملا۔ اندر جھانکنے پر وہاں کچھ بھی نہ تھا، جیسے وہ جگہ کبھی موجود ہی نہ رہی ہو۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ مسز زہرا شاید کسی اور جگہ جا کر لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ مریم نے مسز زہرا کے سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ ہر جگہ یہ بات پھیلانے لگی کہ سچی خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس بیوٹی پارلر کی کہانی بچوں کو سناتے ہیں، اور ہر کوئی دل میں ایک امید رکھتا ہے کہ شاید وہ کبھی مسز زہرا سے مل سکے۔ سالوں بعد گاؤں میں ایک نئی خبر پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے گاؤں کے قریب جنگل کے کنارے ایک سفید لباس والی عورت کو دیکھا ہے جو لوگوں کو مشورے دیتی اور ان کے دکھوں کا علاج کرتی ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ مسز زہرا ہیں جو دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔
मरियम भी इस खबर से मुतासिर हुई। इसके दिल में मिसिस ज़ोहरा को दोबारा देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। इसने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि ये अफवाहें सच हैं या महज गुमान। एक सुबह मरियम ने अपने हार को पहना और जंगल की तरफ रवाना हो गई। वो रास्ते में दुआ करती रही कि अगर ये वाकई मिसिस ज़ोहरा हैं तो वो उनसे मिल सके। जंगल में दाखिल होते ही मरियम को अजीब सी सुकून बख्श खुशबू महसूस हुई, जैसे ये जगह किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। जंगल के अंदर मरियम ने एक खूबसूरत जगह देखी जहां हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे और एक छोटा सा तालाब चमक रहा था। अचानक इसे एक आवाज़ सुनाई दी, मरियम, तुमने साबित किया कि खूबसूरती किरदार में होती है। तुम्हारे नेक अमलों ने मुझे खुश किया है। मरियम ने मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद लिबास में मिसिस ज़ोहरा खड़ी थीं। उनकी मुस्कुराहट पहले से ज़्यादा दिलकश और उनकी शख्सियत में पहले से ज़्यादा नूरानीपन था। मिसिस ज़ोहरा ने मरियम के हार की तरफ इशारा किया और कहा, ये हार सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक आजमाइश की। ये इस बात का इम्तिहान था कि क्या तुम अपनी अंदरूनी खूबसूरती को पहचान कर दूसरों के लिए रोशनी बन सकती हो। तुमने ये आजमाइश कामयाबी से पूरी की। मरियम ने मिसिस ज़ोहरा से पूछा कि वो गांव से क्यों चली गई थी। ज़ोहरा मुस्कुराई और कहा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे गांव तक महदूद नहीं। दुनिया के और भी बहुत से लोग हैं जो जिंदगी का हकीकी मतलब समझने के लिए रहनुमाई चाहते हैं, लेकिन तुमने जो सबक सीखा इसे दूसरों तक पहुंचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिसिस ज़ोहरा ने मरियम को एक किताब दी जो जादुई थी। उन्होंने कहा कि ये किताब इसे नेकी के रास्ते पर चलने में मदद देगी और दूसरों की जिंदगी बदलने के तरीके सिखाएगी। इसके बाद ज़ोहरा धीरे धीरे नज़रों से ओझल हो गईं और मरियम को यकीन हो गया कि वो अब किसी और जगह लोगों की रहनुमाई के लिए जा रही हैं। मरियम ने गांव वापस जाकर अपनी जिंदगी को मज़ीद खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इसने मिसिस ज़ोहरा की दी हुई किताब से सीख कर लोगों को न सिर्फ खूबसूरती की हकीकी अहमियत सिखाई बल्कि उन्हें ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने का हौसला भी दिया। ख्वाबों का ब्यूटी पार्लर गांव के लिए एक यादगार कहानी बन गया और मरियम ने अपनी नेक नीति और खिदमात से गांव को एक ऐसी जगह बना दिया जहां मोहब्बत, हमदर्दी और खुशी हर तरफ नज़र आती थी। वक्त गुजरता गया और मरियम की शोहरत गांव से निकलकर आसपास के इलाकों तक फैल गई। लोग दूर दूर से इसके पास आते, अपनी परेशानियां बयान करते और इससे मशवरा लेते। मरियम ने अपने घर के एक कोने को एक छोटे मरकज़ में तब्दील कर दिया जहां वो लोगों को मिसिस ज़ोहरा की किताब से हासिल किए गए असबाक सिखाती थी। एक रात मरियम ने ख्वाब देखा कि मिसिस ज़ोहरा किताब के सफ़े पलट रही हैं और उनके अल्फाज मरियम के दिल में गूंज रहे हैं। ये किताब न सिर्फ इल्म का ख़जाना है बल्कि इसमें जादुई ताकत भी है। इसके सफ़े तभी खिलेंगे जब कोई नेक नीति के साथ दूसरों की मदद करना चाहेगा। अगली सुबह मरियम ने किताब को गौर से देखा। इसने महसूस किया कि कुछ सफ़े अभी तक बंद थे, जैसे उनमें कुछ राज छुपे हो। इसने ये फैसला किया कि वो अपनी खिदमत को मज़ीद बढ़ाएगी ताकि उन सफ़ों को खोल सके और मज़ीद इल्म हासिल कर सके। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया। वो बीमार और कमज़ोर नज़र आता था और लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन इसका हुलिया देखकर लोग इससे दूर रहने लगे। मरियम को जब यह खबर मिली तो वो फ़ौरन इस शख्स के पास गई और इसे अपने घर ले आई। इसने इसकी बीमारी का इलाज किया और खाने पीने का इंतज़ाम किया। कुछ दिनों बाद वो शख्स ठीक हो गया और जाते वक्त मरियम का शुक्रिया अदा किया। इसने कहा, तुम्हारी नेकी ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारे इस अमल को कभी नहीं भूलूंगा। इसी रात मरियम ने किताब में एक नया सफ़ा खुलते देखा। इस पर लिखा था, नेकी करना कभी ज़ाय नहीं जाता, चाहे दुनिया इसे देखे या ना देखे। जो दिल से मदद करता है वही हकीकी जादूगर है। ये पढ़कर मरियम के दिल को बेहद सुकून मिला। इसने समझ लिया कि मिसिस ज़ोहरा का दिया हुआ मिशन न सिर्फ दूसरों की मदद करना है बल्कि खुद को अंदर से मजबूत और नेक बनाना भी है। मरियम ने अपनी नेकियों का दायरा बढ़ा दिया। इसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां वो उन्हें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि इखलाकी तरबियत भी देती थी। वो ख़वातीन को भी तरबियत देती कि वो अपनी सलाहियतों को पहचाने और अपने पैरों पर खड़ी हो। मरियम के इस मिशन ने गांव को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। एक दिन मरियम अपनी खिड़की के पास बैठी थी कि इसने दौर से एक सफ़ेद रोशनी आती देखी। वो फ़ौरन बाहर गई तो देखा कि मिसिस ज़ोहरा एक बार फिर सफ़ेद लिबास में इसके सामने खड़ी थी। ज़ोहरा ने कहा, मरियम,
तुमने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया है। तुम्हारी नेकियों ने न सिर्फ गांव बल्कि दुनिया के बहुत से दिलों को बदल दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस किताब का आखिरी राज भी जान लो। ज़ोहरा ने किताब के आखिरी सफ़े को खोला। इस पर लिखा था, मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत हैं। जो उन उसूलों को अपनाता है वो दुनिया को जादुई तरीके से बदल सकता है। मरियम की खिदमत और कुर्बानी ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन इसका असर यहीं तक महदूद ना रहा। आस पास के इलाकों से भी लोग गांव आने लगे ताकि मरियम की तालीमात और मशवरे हासिल कर सके। गांव अब एक मिसाल बन गया था, जहां हर शख्स दूसरे की मदद को अपना फ़र्ज समझता था। कुछ साल गुजर गए और मरियम एक दिन मिसेस ज़ोहरा के साथ गुजारे लम्हों को याद कर रही थी। इसी रात इसे एक और ख्वाब आया। इस बार ख्वाब में मिसेस ज़ोहरा ने कहा, मरियम, तुम्हारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी ज़िंदगी दूसरों के लिए मशअल राह बन चुकी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी मीरास को मज़ीद दूर तक पहुँचाओ। एक नई नस्ल को वो सबक सिखाओ जो तुमने सीखा है। मरियम ने ख्वाब के बाद फैसला किया कि वो अपनी तालीमात को मज़ीद फैलाएगी। इसने एक बड़ा स्कूल और तरबियती मरकज़ कायम करने का मंसूबा बनाया, जहां न सिर्फ गांव बल्कि दूसरे इलाकों के लोग भी आकर अखलाकियात, हुनर और ज़िंदगी के हकीकी उसूल सीख सके। ये मरकज़ मिसेस ज़ोहरा इंस्टीट्यूट के नाम से कायम किया गया। यहाँ वो किताब महफूज रखी गई जो मिसेस ज़ोहरा ने मरियम को दी थी, और ये मरकज़ मोहब्बत, खिदमत और नेकी का पैगाम देने वाली एक अलामत बन गया। इंस्टीट्यूट की शोहरत बढ़ती गई। इस जगह पर आने वाले लोग अपने दिल की परेशानियां लेकर आते और यहाँ से एक नया जज्बा लेकर जाते। मरियम खुद हर तालिब इल्म और हर मेहमान के साथ वक्त गुजारती, उनके मसाइल सुनती और उनके दिलों में उम्मीद की रोशनी जगाती। एक दिन मरियम ने महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल होने को है। इसने गांव के तमाम लोगों को बुलाया और उनसे कहा, ये इंस्टीट्यूट और ये सबक अब सब के लिए है। याद रखें, नेकी और मोहब्बत वो ताकतें हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। ये मेरा ख्वाब था और अब ये आप सब की जिम्मेदारी है कि इसे जिंदा रखे। इसी रात मरियम ने पुरसुकून नींद में अपनी आखिरी सांस ली। गांव में सोग का समा था, लेकिन हर शख्स ये अज़्म लेकर उठा कि वो मरियम के ख्वाब को कभी मरने नहीं देंगे। मरियम के जाने के बाद भी मिसेस ज़ोहरा इंस्टीट्यूट तरक्की करता रहा। इसके तलबा ने न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत, खिदमत और नेकी का पैगाम फैलाया। गांव के लोग आज भी रात के वक्त जंगल के किनारे रोशनी देखने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि वो रोशनी मिसेस ज़ोहरा और मरियम की मौजूदगी का सबूत है, जो अब भी इस गांव और इंस्टीट्यूट की हिफाजत कर रही हैं। मरियम के इंतकाल के बाद गांव के नौजवानों ने इसके मिशन को संभाला। इंस्टीट्यूट के तलबा ने मिलकर मरियम की ज़िंदगी और तालीमात को एक किताब की शक्ल दी, जिसका उन्वान था, खूबसूरती की असल हकीकत। ये किताब इंस्टीट्यूट में आने वाले हर शख्स को दी जाती ताकि वो मरियम की कहानी को आगे बढ़ा सके। इंस्टीट्यूट से तरबियत पाने वाले अफराद ने अपने गांव वापस जाकर वहां मोहब्बत, हमदर्दी और नेकी का कल्चर फ़रोग़ दिया। उनमें से कई लोगों ने छोटे छोटे मराकिज़ कायम किए जो मिसेस ज़ोहरा इंस्टीट्यूट के उसूलों पर चलते थे। उन मराकिज़ को रोशनी के मराकिज़ कहा जाने लगा। उनका मकसद लोगों की मदद करना, उन्हें ज़िंदगी के मसाइल हल करने के तरीके सिखाना और उन्हें उनकी असल खूबसूरती की अहमियत बताना था। कुछ साल बाद एक सहाफ़ी ने मिसेस ज़ोहरा इंस्टीट्यूट और मरियम की कहानी के बारे में सुना। इसने गांव का दौरा किया और इंस्टीट्यूट पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई। ये फ़िल्म दुनिया भर में देखी गई और लोगों के दिलों को छू गई। मरियम की कुर्बानी और मिसेस ज़ोहरा की तालीमात को दुनिया भर में सराहा गया। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इंस्टीट्यूट में आना शुरू हो गए। वो यहाँ से न सिर्फ नेकी के उसूल सीखते बल्कि अपने इलाकों में जाकर इसी तरह के मराकिज़ कायम करते। एक दिन इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में वो किताब जो मिसेस ज़ोहरा ने मरियम को दी थी, अचानक रोशन हो गई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये मरियम और मिसेस ज़ोहरा की रूहों की तरफ से एक इशारा था कि वो खुश हैं और चाहते हैं कि उनका पैगाम हमेशा जिंदा रहे। किताब के एक और सफ़े पर एक नई तहरीर ज़ाहिर हुई, जो नेकी की शमा जलाए वो कभी अंधेरे से नहीं डरता। रोशनी बांधते रहो, ये तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगी। नेकी की शमा हमेशा रोशन। मिसेस ज़ोहरा इंस्टीट्यूट एक आलमी तहरीक बन गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोशनी के मराकिज़ खिले, जहां मरियम और मिसेस ज़ोहरा की तालीमात को आगे बढ़ाया जाता।
لوگ وہاں جا کر یہ سیکھتے کہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے۔ مریم کی کہانی اور مسز زہرا کے جادوئی اصول ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے گئے۔ گاؤں کی خوبصورتی اور محبت کی مثال اب پوری دنیا کے لیے ایک سبق بن چکی تھی۔ آج بھی گاؤں کے بزرگ رات کے وقت جب آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ ستارے مریم اور مسز زہرا کی روشنی ہیں، جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ محبت اور نیکی کا جادو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک شخص کی نیکی اور خدمت پوری دنیا کو بدل سکتی ہے، اور حقیقی خوبصورتی ہمیشہ دل سے جھلکتی ہے۔